Assalamu alaikum students. I hope that everyone is safe and fine. Today we have to start from our we were discussing about the commands in GW Basic. So in today's lecture we will study about the command that is of system command. This command is used to exit from GW Basic and return to operating system environment. So the purpose of system command is if you want to exit the GW Basic, if you want to switch off a GW Basic and you want to open any other program or you want to do any something else in your computer system, so you have to use the system command. System का keyword आप लिखोगे, you can see the syntax over here, system system. System का word syntax आप लिखेंगे तो क्या होगा कि आपका GW basic जो होगा वो खत्म हो जाएगा, exit हो जाएगा, close हो जाएगा, and you will return to the operating system environment and you can do all the tasks by your in your computer that you want. Next command is of list command. This command is used to list all or part of the program currently in memory to the printer. अब वो कहते हैं कि लिस्ट कमांड क्या करती है, इट इज यूज टू लिस्ट, आपने अगर अपने प्रोग्राम की कुछ लाइंस लिस्ट करवानी है या प्रिंटर से आपने कोई चीजें कुछ स्पेसिफिक लाइंस आपने प्रिंट आउट लेने हैं या अपने प्रोग्राम की कुछ चीजें आपने डिस्प्ले करवानी है, तो देन यू हैव टू यूज द लिस्ट कमांड. सो यू कैन सी द सिंटेक्स ओवर हियर. लिस्ट का सिंटेक्स में ये इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करनी है, आपने लिखना है एल लिस्ट, एल मतलब एल एंड LIST लिस्ट, डबल एल आप यहाँ पर यूज कर रहे हो. उसके बाद आपने लाइन नंबर, जहां से स्पेसिफिक लाइन नंबर आपने स्टार्ट करना है और जहां तक आपने जाना है उन दोनों लाइन नंबर को आप मेंशन करोगे. ऑलराइट, another syntax of list command is list and line number and up to you can simply write a dash. Dash means up till the end of the program that you have written. Okay, so GW basic will returns to the command level and it will list all the, or the specific part of the program that you wants to list out. Okay, next command is print command. This command is used to print data at the printer. अब print command आपकी क्या करती है, अगर आपने अपने printer पे data print करवाना है, सेम लाइक आप अपने normal operating system में normal windows में printing का task perform करते हो, सेम इसी तरह अगर GW basic के through आपने printing करवानी है, then you have to use the print command. Print command के लिए भी आपका जो syntax होगा वो l print होगा. Alright, l print and list of expression whatsoever you wants to print. इंटरप्रिटेशन में देखें, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस. स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज अ स्ट्रिंग लिटरल और वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ स्पेशल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स. अब स्ट्रिंग एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो आपने अल्फाबेट्स की फॉर्म में डाटा लिखा हुआ होगा, अगर वो आपने प्रिंट आउट करवाना होगा, देन यू विल यूज राइट इन द स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस एंड इट मस्ट बी सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. सेमीकोलन से आप सेपरेट करते जाओगे जितनी भी चीजें आपने, फॉर एग्जांपल ए आपने प्रिंट करवाया, उसके बाद बी प्रिंट करवाना है, आप सेमीकोलन लगाओगे, फिर सी लिखोगे, सेमीकोलन, सेम इसी तरह आप करते जाओगे. The formatting characters determine the field and the format of printed strings or numbers. This statement is the same as print except that output goes to the printer. For more information about string and numeric fields and the variables used in them, see the print statement. The lprint statement assumes that the printer is an 80 character wide printer. वो कहते हैं lprint की जो statement होती है समझती है कि जो आपका printer है वो 80 characters wide आपके उस printer में आराम से print हो सकते हैं. Okay, ये बहुत बड़ी range होती है आपके printing की. Reset the number of characters that can be printed across the printed page assuming that the printer is wider than 80 characters. See the width statement. ये इसके लिए आप एक और statement use करते हो जो कि आप width statement होती है, वो अभी आपकी उसने इसमें mention नहीं की है. You can study in, if you want to study it, you can study it from Google. Okay, because it's out of scope of your book, that is why I'm not explaining here right now. Okay, next statement is cont statement. Cont means continue. Cont का word जो है वो continue से निकला है, CONT, cont. This command is used to continue program execution after a break. अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई ब्रेक दी है या आपने अपने प्रोग्राम को डिवाइड किया कि इतनी देर के लिए स्टॉप कर जाए, and you want to start the program again, so you will use the command of cont, CONT. Syntax simple, आपने CONT लिखना है तो जो आपका प्रोग्राम जहां से आपने लीव किया होगा वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा. इंटरप्रिटेशन देखें इसकी, resumes program execution after control break, stop helps a program. आपने अपना प्रोग्राम स्टॉप किया हुआ है, कंट्रोल ब्रेक की key आप प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम जो होगा वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी. then if you want to do the execution of the program again, then you will use the word of cont.
Execution continues at the point where the break happened. If the break took place during an input statement, execution continues after reprinting the prompt. अब वो कहते हैं कि अगर आप इनपुट ले रहे हो यूजर से और वहां पर आपने अपना प्रोग्राम स्टॉप कर लिया, तो फिर क्या होगा कि आप जब कभी भी प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट करोगे तो जो आपको इनपुट वैल्यूज होंगी वो अगेन देनी पड़ेंगी। ठीक है, अगेन यूजर को इनपुट की वैल्यूज उसे बतानी पड़ेंगी कि अब क्या इनपुट्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, या इस ये जो आपने आउट जनरेट कर रहे हो आउटपुट इसकी, उसकी इनपुट्स आपको दोबारा देनी पड़ेंगी। Count is useful in debugging in that it lets us set breakpoints with the stop statement, modify variables using direct statements, continue program execution, or use goto to resume execution at the particular line number. If a program line is modified, count will be invalid. वो कहते हैं कि जो काउंट की स्टेटमेंट होती है आपकी डीबगिंग का टास्क परफॉर्म करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपको डीबगिंग में यू हैव टू सी द लाइन बाय लाइन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम, दैट वेदर the program is written correctly, and if there are any errors, and if you want to check your program, then you have to use the count statement. It's very helpful. एक एक लाइन बाय लाइन आपकी एग्जीक्यूशन होती रहती है, जहां कहीं भी एरर आता है वहां पर आपका स्टॉप हो जाती है, इसका आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता और आप उसे जल्दी से पॉइंट आउट कर सकते हो और अपने एरर्स को रिमूव कर सकते हो। ओके, गो टू की स्टेटमेंट होती है, यू विल स्टडी गो टू स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। सो गो टू स्टेटमेंट इज नॉर्मली यूज्ड टू जंप द कंट्रोल, टू गिव द कंट्रोल टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर। आप अपने प्रोग्राम का जो लाइन नंबर होता है उसको अगर आपने स्किप करना है तो फिर आप गो टू स्टेटमेंट यूज करते हो। ठीक हो गया, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द GW बेसिक कमांड्स। अब ये 19 कमांड्स हैं टोटल आपकी बुक में जो मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट आर द बेसिक स्टेटमेंट्स। अब GW बेसिक में स्टेटमेंट्स क्या रोल प्ले करती हैं, वी विल स्टडी अबाउट दिस। हियर आर सम कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट्स ऑफ GW बेसिक लैंग्वेज। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एंड स्टेटमेंट। एंड की स्टेटमेंट क्या करती है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्लोज ऑल फाइल्स एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल। अब वो कहते हैं कि GW बेसिक में एंड की स्टेटमेंट आप हमेशा अपने प्रोग्राम के आखिरी में, आखिरी जो लाइन होगी वहां पर आप एंड का वर्ड लिखते हो। ठीक है, तो जब आप एंड का वर्ड लिखोगे तो क्या होगा, प्रोग्राम आपका समझ जाएगा, आपका जो इंटरप्रेटर होगा वो समझ जाएगा यहाँ आपका प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो एंड की स्टेटमेंट, इट इज बेस्ट ऑप्शन टू राइट द प्रोग्राम एंड यू हैव टू टर्मिनेट द प्रोग्राम बाय यूजिंग अ एंड स्टेटमेंट। All right, its syntax is simple end, END. Next statement is rem statement. अच्छा, अब रेम स्टेटमेंट क्या करती है, दिस इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड इज यूज्ड टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। अब क्या होता है, रेम की जो स्टेटमेंट है ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती है, मींस टू से कि आप अगर अपने प्रोग्राम के अंदर रेम की कोई स्टेटमेंट लिखोगे तो वो वाली लाइन जहां पर आपने रेम की स्टेटमेंट लिखी है दैट विल नॉट एग्जीक्यूट। रेम स्टेटमेंट इज ओनली यूज्ड टू ऐड द एक्सप्लेनेटरी मार्क्स फॉर द यूजर, for the programmer, or with whom you are for which you for whom you are writing the program। जिसके लिए भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसको आपने अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन बतानी है कि आपका प्रोग्राम एक्चुअली काम क्या कर रहा है तो आप रेम की स्टेटमेंट लिखोगे, एंड रेम मींस रिमार्क्स। एक्स्ट्रा आपने इंफॉर्मेशन अगर देनी होगी तो फिर आप रेम की स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सिंटेक्स इसका सिंपल, रेम का वर्ड आपने लिखना है और आगे आपने ब्रैकेट्स में उसने बताया है कि इसके अंदर आपने रिमार्क्स लिखना है, जो कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हो। एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ये एग्जीक्यूट नहीं होती, इसका कोई प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं होता, ओनली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेम की स्टेटमेंट यूज की जाती है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर लाइन नंबर 10 पे उसने लिखा रैम दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। अब लाइन नंबर 10 पे रैम के अंदर ये सारी रिमार्क्स देने का मतलब क्या था कि जो भी यूजर आपका प्रोग्राम आपका देख रहा है, कोई प्रोग्रामर आपका प्रोग्राम देख रहा है, वो समझ जाए कि आपके प्रोग्राम में एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। Okay, so in line number 20 they have written the program for calculating the average. A is equal to 15, B is equal to 25, average is equal to A plus B divided by 2. Okay, एंड प्रिंटिंग द एवरेज। सिंपल प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है, तो ए एंड बी दोनों को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एवरेज आपकी प्रिंट आउट हो रही है। यू कैन सी दैट इन लाइन नंबर 70 दे हैव रिटन एंड, सो इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी GW बेसिक प्रोग्राम बाय यूजिंग एंड स्टेटमेंट, हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, इन दिस प्रोग्राम लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 50 आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखें कि ये जो आपने कॉमा लगा के लिखा, इस तरह से भी आप रिमार्क्स लिख सकते थे, दो सिंटेक्स उसने यहाँ आपको बताए थे। वो कहते हैं लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 50 बोथ ऑफ देम आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, इनका ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। द बेसिक इंटरप्रेटर डज नथिंग टू दीज लाइन, दीज आर दे आर नॉट ट्रांसलेटेड
to machine language program during the translation process. The REM statement, however, increases the readability of the code and helps in modifying, understanding, and debugging the program. So these all are the advantages of using REM statement, that it is used to increase the readability of the program. आपके program के readability को कि जो यूजर आपका प्रोग्राम देख रहा है, कोई प्रोग्रामर जो आपके लिए प्रोग्राम बना रहा है, अब वो आपको अच्छा से प्रोग्राम समझ आ जाए कि हाउ योर प्रोग्राम इज एक्चुअली वर्किंग, and to modify and to understand or to debug the program. That is why we have to add the REM statements. Okay, so third statement is stop statement. This statement is used to terminate program execution temporarily and returns to command level. अब stop statement आपकी क्या करती है, अपने program को if you want to terminate it temporarily, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपना program stop करना चाहते हो, terminate करना चाहते हो, तो फिर आप stop की statement लिखोगे. Okay, simple syntax of stop is stop, stop. Interpretation: stop statement can be used anywhere in the program to terminate execution of the program. When a stop statement is encountered in the program, the following message is printed: break in line n. वो कहते हैं जब कभी भी आप stop की statement लिखते हो, you can easily write stop statement anywhere in the program from where you want to terminate the execution. आपने 20 lines लिख ली, आप line number 21 पे अपना stop की statement लिख दोगे, तो आगे आपके program जो होगा वो line number 21 के आगे से continue नहीं करेगा, वो line number 20 पर ही stop कर जाएगा. Okay. Unlike the end statement, stop statement does not close files. GW Basic always returns to command level after a stop is executed. Execution is resumed by issuing a cont command. वो कहते हैं end statement आपकी क्या करती है, end आप अपने program की line में आखिरी में लिखते हो, तो end statement किसी केस क्या होता है, आपका interpreter समझ जाता है that you have finished writing the program, you have finished writing the code. So unlike end statement, आपकी stop statement ऐसा हरगिज नहीं करती. आपकी stop statement आपकी program की execution को temporarily तौर पर रोक देती है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है थोड़ी देर के लिए. और अगर आपने वहीं से आगे कंटिन्यू करना होगा, तो फिर आप कॉन्ट की स्टेटमेंट, मतलब CONT, कॉन्ट, दैट मींस कंटिन्यू, आप इसकी स्टेटमेंट लिखोगे तो आपका प्रोग्राम अगेन कंटिन्यू हो जाएगा. Okay, you can see the example of cont statement over here. They have written input A, B, C, K is equal to A. They are using the formula. And in line number 30, they have written stop. अब जब क्या होगा, अब आपका इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को आपके एग्जीक्यूट करेगा, तो जब लाइन नंबर 30 पर वो आएगा, तो यहाँ पर उसे स्टॉप का कमांड स्टेटमेंट मिल गई है. तो स्टॉप की स्टेटमेंट क्या करेगी, आगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होने देगी. ठीक है, अब देखिए स्टॉप से पहले पहले तक की दोनों लाइंस आपकी चलेंगी. जब कभी भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, तो उससे ऊपर की दो लाइंस आपकी चलेंगी. तो जब वो आपकी लाइंस चली है, तो आया यहाँ पे 1, 2 और 3, ये चीजें आपकी प्रिंट हो गई. यहाँ कहाँ से प्रिंट हुई, आपकी लाइन नंबर 20 से प्रिंट हुई. उसके बाद वो आ गया, मैसेज आ गया ब्रेक इन 30. अब लाइन नंबर 30 पर क्योंकि आपने स्टॉप लिखा हुआ था, दैट इज व्हाई दे हैव रिटन, अब दे हैव प्रिंटेड अ मैसेज ओवर हियर दैट देयर इज अ ब्रेक इन लाइन नंबर 30. ओके, सो अब लाइन नंबर 30 पर ब्रेक आ गया. उसके बाद जब कभी भी आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहोगे, यू कैन सी ओवर हियर, आपने अपना प्रोग्राम कंटिन्यू किया यहाँ पर, तो आपका आगे से आगे फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म हो गई. सी, स्टैटिक के, मल्टीप्लस, प्रिंट एम, ये सारी जो भी उसने फॉर्मूलाज लगाए थे वो सारे कंटिन्यू हो गए और आपको एक रिजल्ट नजर आ रहा है स्क्रीन पर. ऑल राइट, so these were a few GW basic three statements that were very important statements in executing and in writing the programs in GW basic. Okay. नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स इन बेसिक. अब आपके ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अनलाइक या मैथमेटिक्स में आप जिस तरह से करते हैं, यू आर यूजिंग द ऑपरेटर ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज. सिमिलरली यू हैव टू यूज सच टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन GW बेसिक आल्सो. ऑपरेटर्स आर सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा. अपने डेटा पर डिफरेंट ऑपरेशंस अगर आपने परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए आप ऑपरेटर्स यूज करते हो. These include arithmetic, relational, logical and assignment operators. अब ये इस चार टाइप के, सॉरी उसने यहाँ ऑपरेटर्स आपको बताया कि GW बेसिक में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं, रिलेशनल भी यूज करते हैं, लॉजिकल भी यूज कर सकते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज करते हैं. Arithmetic operators are very easy operators, and these are the normal operators or symbols which we use in our daily life also and in mathematics also. Arithmetic operators क्या होते हैं? Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on values or numbers. The DW Basic defines the following standard arithmetic operators. Arithmetic operation में आपके addition, subtraction, division,
मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंट, नेगेशन, मॉड्यूलस और इंटेग्रल डिवीजन। ये आपके कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपके 6 ऑपरेटर्स हैं। ये आपके तकरीबन 6 नहीं, आई थिंक सो इट्स 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, sorry, these are the 8 arithmetic operation which GW basic normally uses. अब यहाँ पर उसने बताया हुआ सिंबल आगे बताया हुआ उसका, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया हुआ कि मैथमेटिकल अगर हम लिखे तो हम इसे इस तरह लिखते हैं, GW बेसिक में अगर हमने लिखना है तो इस तरह हम लिखेंगे। ऑल राइट। अब ये कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको नॉर्मली पता है, डिवीजन भी पता है, एक्सपोनेंट भी आपको पता है, पावर में आपने कोई वैल्यू देनी है। नेगेशन का मतलब है जो कुछ भी आपने लिखा है उसको अगर आपने रिवर्स करना है, नेगेटिव में लेकर जाना है तो आप माइनस का साइन लगा देते हो, जैसे माइनस ए लिखा है यहाँ पे। मॉड्यूलस है, आपने उसका मॉड निकालना है तो आप MOD मॉड का फंक्शन यूज करते हो। इंटेग्रल डिवीजन है, रिमाइंडर आपको कुछ चाहिए तो फिर आप यहाँ पर बैक स्लैश का साइन यूज करोगे। The use of first 6 operators is straightforward. पहले 6 वो कहते हैं up till negation, these all are the straightforward operators. Normally we use in mathematics. The last two operators are modulus, also called remainder operator. वो कहते हैं last जो operator है आपका second last operator, that is of modulus, it is an important operator and it is also known as remainder operator. Okay. Contrary to the division operator which returns the quotient, the modulus operator returns the remainder of an integral division. वो कहते हैं modulus operator आप कब यूज करते हो, जब कभी भी आपको remainder required होता है, remainder अगर आपको चाहिए होता है, ठीक है। For example, if A and B are two integers having values 8 and 3 respectively, then the express A mod B will be evaluated to 2. अब वो कहते हैं कि अगर आपने इसकी वो करनी है, डिवीजन आप परफॉर्म करें, मॉड्यूलस बेसिकली एक डिवीजन की तरह ही होता है। 8 और 3 दो वैल्यूज हैं, ए मॉड बी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा, आपका 2 आएगा, विच इज द रिमाइंडर ऑफ इंटेग्रल डिवीजन। The integral division does not allow a fractional value in the quotient. It always return the quotient as a whole number. For example, the result of expression a divided by b for above two variables a and b will be true. तो क्या होगा, 2 जो होगा वो आपका रिमाइंडर होगा। इंटेग्रल डिवीजन में भी सेम आप यही चीज परफॉर्म करते हो। ओके। नेक्स्ट इज योर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर बहुत आसान होते हैं आपके, नॉर्मली आप यूज करते हैं एंड यू हैव आल्सो स्टडीड दीज इन योर प्रीवियस क्लासेस। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। दो वैल्यूज को अगर आपने कंपेयर करना है, रिलेशन देखना है कि इधर द ऑपरेटर्स वैल्यूज यू आर कंपेयरिंग इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, तो फिर आप ये सारी चीजें अगर परफॉर्म करनी है, दैट मीन्स दैट यू आर यूजिंग द रिलेशनल ऑपरेटर्स। they always these operators always evaluates to true or false। मतलब दो तरह से आपका रिजल्ट आ सकता है, either the first operator is less than, either it is greater than, either it is less or equal to, or it is greater than or equal to, or it is not equal to। If they always produce a non-zero value in most cases, one if the relational operator evaluates to true, or a zero value if the relational operator evaluates to false। मतलब अगर one आपकी value return होती है, means to say that the your answer is true, and if the value is zero, means to say that the answer is false। There are six basic relational operators in basic. Suppose a, b and c are three integer variables having values 123, 215 and 123 respectively, then तो फिर क्या होगा, ये तीन वैल्यूज वो ले रहा है, ए बी और सी, तीन आपके वेरिएबल्स ले रहा है, उसको कंपेयर करके बता रहा है। अब इक्वल टू की बात अगर हम करते हैं तो ए इज इक्वल टू सी वो कहता है, तो क्या ए सी के इक्वल है? ए की वैल्यू दी हुई है उसने 123 और सी की वैल्यू दी हुई है 123, तो इट मींस इट इज ट्रू। तो आपके रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू क्या मतलब है, आपका 1 आएगा, रिजल्ट आंसर आपका 1 आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज लेस देन, तो b इज लेस देन a, b की वैल्यू क्या थी 215 एंड a की वैल्यू क्या है 123, क्या b लेस है? नहीं लेस, b इज ग्रेटर देन a, तो योर आंसर विल बी फॉल्स, मींस टू से आंसर विल बी 0। ग्रेटर देन है a 123 इज ग्रेटर देन c 123 से ग्रेटर है? नहीं, ये तो इक्वल है, दैट इज व्हाई योर रिजल्ट विल बी फॉल्स। लेस और इक्वल है, a क्या है 123, दैट इज लेस और इक्वल टू b है 215, क्या ये a जो है वो b से लेस और इक्वल है? लेस तो है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है ना, लेस है, तो फिर क्या होगा, आपका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। b इज लेस और b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, क्या b, सॉरी यहाँ पर लेस देन उसका उसने सिंबल यूज किया, मगर यहाँ पर एक्चुअली आपका ग्रेटर देन आना चाहिए था। यस, सिमिलर लाइक दिस, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, क्या b a से ग्रेटर देन और इक्वल है?
अब वो अच्छा ठीक है, वो लेस देन की स्टेटमेंट यहाँ पर यूज कर रहा है, बी को पहले लिख रहा है, ए अगर यहाँ पर हम पहले लिखते तो हम वो ग्रेटर की यूज करते, दे आर यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ बी ओवर हियर फर्स्ट। अब बी की वैल्यू क्या है 215, बी इज लेस और इक्वल देन 123, क्या बी लेस है? नहीं है, लेस ग्रेटर है ना, तो दैट इज व्हाई योर रिजल्ट विल बी फॉल्स। ए इज नॉट इक्वल के लिए दो वो ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ ऑफ देम। इक्वल नॉट इक्वल टू के लिए क्या बी और ए इक्वल नॉट इक्वल नहीं है इक्वल, तो दैट इज व्हाई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, 123 and 215 that are not equal. So this was the all discussion about the relational operators. In our next lecture we will start from the logical operators. Thank you.